السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ، جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ حسن نصر اللہ کے ٹھکانے کا پتہ ایک ایرانی جاسوس نے بتایا، فرانسیسی اخبار کا دعویٰ۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ منتقل کر دیا گیا۔ یحییٰ کی سیکورٹی میں بھی لائی گئی تبدیلی۔ حسن نصر اللہ کے قتل میں امریکہ بھی شامل، ایران وسیع جنگ کی کر رہا ہے تیاری۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کا بیان۔ پاکستان اپنے کرم کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ پاکستان کو صرف اس کی دہشت گردی اور بنیاد پرستی سے پہچانا جا سکتا ہے، وزیر خارجہ جے شنکر کی اقوام متحدہ میں تقریر۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، امریکی صدر نے کہا جنگ بندی کا وقت آ گیا۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی، 100 کے قریب ہلاک، درجنوں زخمی۔ وقف بورڈ خواتین کے بنیادی حقوق بھی چھین رہا ہے، اسمرتی ایرانی کی نئی منطق قادیانی فرقے کو مسلم وقف بورڈ سے جوڑ کر مسلم سماج کو پہنچائی ٹھیس۔ راہل گاندھی جھوٹ بولنے کی مشین ہے، امت شاہ کا ہریانہ کے گروگرام میں انتخابی جلسے عام سے خطاب۔ کانگریس کے راشد الوی نے کہا امت شاہ اور مودی مسائل پر بات کرنے کے بجائے شخصی ریمارک میں مصروف۔ کٹھوعہ انکاؤنٹر میں 2 عسکریت پسند ہلاک، اتوار کے روز بھی جاری رہا سرچ آپریشن، زخمی پولیس اہلکاروں کی حالت مستحکم۔ اور بہار کے ارریا میں سیلاب جیسی صورتحال، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ نصر اللہ کی ہلاکت کی اطلاع ملنے کے بعد حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ میں منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ میں سعودی عرب کی سرکاری کمپنی العربیہ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں سنوار کی سیکورٹی میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کے دیگر سینئر عہدیداروں نے بھی پٹی میں اپنی نقل و حرکت روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل اس بات کی تحقیق کر رہا تھا کہ آیا یحییٰ غزہ کی پٹی میں IDF کے حملے میں جاں بحق تو نہیں ہوئے، لیکن کسی بھی مثبت انٹیلی جنس رپورٹ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
فرانسیسی اخبار لی پیرسن نے لبنانی سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیل نے ایک ایرانی ایجنٹ کے ذریعے حساس معلومات حاصل کی تھیں جن میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں گزشتہ جمعہ کو قتل سے قبل موجودگی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس معلومات کے مطابق اسرائیل نے اس علاقے پر فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں حسن نصر اللہ جاں بحق ہو گئے۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق حسن نصر اللہ کے قتل میں سب سے بڑا اور حیران کن کردار ایرانی ایجنٹ کا ہے، کیونکہ یہ جاسوس حزب اللہ کے اندرونی دائرے میں داخل ہونے اور حسن نصر اللہ کی نقل و حرکت کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ یہ ایرانی ایجنٹ گزشتہ جمعہ سے بیروت میں حزب اللہ کے مقتول عہدیدار محمد سروس کے جنازے میں شرکت کے لیے لبنان آیا تھا۔ اخبار نے مزید کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کے قتل کے دن لبنان میں قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ تھے اور قتل کے وقت وہ 30 میٹر زیر زمین تھے۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ ایرانی ایجنٹ کی اس دراندازی نے اسرائیلیوں کو حملے کے وقت بہت درست طریقے سے مدد کی تاکہ بمباری کے وقت رہائشی کمپلیکس میں نصر اللہ کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اتوار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر لبنانی حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران ان کے قتل کا بدلہ لے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں جو کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ امن حاصل نہیں کر سکتا۔ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ کے خطرے کے پیش نظر ہم چوکس ہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطہ خطرناک اور انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سلامتی کونسل نے ثابت کیا ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہفتے کے روز ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے جماعت کے گڑھ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ایک پرتشدد اسرائیلی حملے میں اپنے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ نے اسمبلی میں سرحد پار دہشت گردی پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دریں اثنا پاکستانی سفارتکار کو نوٹ لیتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ وزیر خارجہ خطاب کر رہے تھے۔ اس لمحے نے جلد ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی اور یہ خبر سرخیوں میں آ گئی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کو پناہ دینے پر پاکستان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے کرم کی وجہ سے عالمی نظام میں پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے ممالک اپنے قابو سے باہر حالات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ممالک تباہ کن نتائج کے ساتھ شعوری انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان کے غلط کام دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی کو صرف بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی شکل میں اس کے برآمدات کے لحاظ سے ناپا جا سکتا ہے۔ Get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization.
and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to. इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए मसले कश्मीर को उठाया था। अपनी तकरीर में शरीफ ने वाज़ेह किया था कि जम्मू कश्मीर भारत की जानिब से मुसलसल वहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाता है और वहाँ पर सख्त इक़दाम किए जाते हैं। अपनी तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ तकरीर की मेज़ पर मुक्के बरसा रहे थे। Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Actions will certainly have consequences. Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. We see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. A dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. The sanctioning of global इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह का कत्ल एक तारीख़ी मोड़ है जो मशरिक़ वस्ता में तब्दील कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि अब जंगबंदी का वक्त आ गया है। जो बाइडन ने डेलावेयर के रेहोबूथ बीच में चर्च से बाहर निकलते हुए नामानिगारों को बताया कि अब जंगबंदी का वक्त करीब आ गया है। इसराइल ने बेरूत के जनूब मशरक़ में जनूबी लुबनान के सरहदी कस्बे क़याम को निशाना बनाया, जहां एक बड़े धमाके से एक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे और सलाहियतों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज ने कहा था कि उसने एक रोज़ कबल बेरूत में एक फ़िज़ाई हमले में उन्हें हलाक कर दिया था।
लुबनान की दारुल-हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के ज़ेर कब्ज़ा मजबूत गढ़ पर इसराइली लड़ाका तैयारों के हमले के बाद शाम को बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके दहिया के आसमान के ऊपर से मुसाफिर तैयारों को उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। इसराइली फ़ौज ने कहा था कि इसने बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ात में तंजीम के सेंट्रल कमांड हेड क्वार्टर पर हमले में नसरुल्लाह को जाँ बहक कर दिया है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत की खबर की तस्दीक की है। यह लुबनानी अस्करत पसंद ग्रुप के लिए एक तबाहकुन थक चुका है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि लड़ाका तैयारों ने गुज़िश्ता रोज़ बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ात में ग्रुप के मरकज़ी हेड क्वार्टर को निशाना बनाया। दर-ए-असना हिजबुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह के कत्ल पर गम व गुस्से की आग भारत तक पहुंच गई है। हिजबुल्लाह के सरबराह के कत्ल की मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक एहतजाजी मार्च का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। इस जिद्दजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हिमायत में कासिब सहीहूने से आज़ाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहूनी के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हक़ तज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत दी। तो कितना बड़ा नेपाल की दारुल-हुकूमत काठमांडू में मूसलाधार बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर सैलाब के बाद मुतअद्दिद रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुसलसल बारिशों की वजह से नेपाल भर में सैलाब आ गया है, जिसके नतीजे में 60 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। एक खबर में ये भी बात बताई गई है कि ये अमवात 100 तक पहुँच गई है। सैलाब की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। हुकूमत ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया है। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में बात करते हुए वक्फ बोर्ड से कुछ सवालात पूछे हैं। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों से मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात को बयान किया और अपना मौक़िफ़ पेश किया। चलते कुछ लोगों ने कहा कि कैसे ट्रिपल तलाक को अवॉइड किया जाए। कई केसेस ऐसे आए जिसमें महिला को प्रताड़ित किया गया कि वो अगर धमकी के बाद भी अपना महर छोड़ के खुला एक्सेप्ट ना करे तो उसका जीना दूभर हो जाता। तो वक्फ बोर्ड ने खुला सर्टिफिकेट देने का भी काम शुरू कर दिया। इसका मतलब वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। आंध्र प्रदेश में मंत्री रहते हुए मेरे सामने एक भयावह स्थिति तब प्रस्तुत हुई जब मुस्लिम समाज में से अहमदिया समाज मेरे पास आया और अहमदिया समाज ने कहा
कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता, जो सरकार नहीं करती, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुरुग्राम के बादशाहपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन हैं। इन्होंने कांग्रेस रुकन पार्लियामान पर अग्निवीर स्कीम के बारे में गलत मालूमात फैलाने का भी इल्ज़ाम लगाया। जानते हो ना जरा, अरे जानते हो या नहीं जानते हो, ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मसीह। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने इतवार को कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इंतखाबात के दौरान ज़ाती तनकीद करते हैं, जबकि उन्हें मसाइल पर बात करनी चाहिए। वो किसी पॉलिसी या इश्यूज़ पर बात नहीं करते। राशिद अल्वी ने कहा है कि अब तक इन्होंने पार्लियामेंट के 2024 के इंतखाबात से कोई सबक नहीं सीखा, लोगों को ये सब पसंद नहीं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हरियाणा में कोई फलाही इक़दाम नहीं किए हैं। हरियाणा इंतखाबात में बीजेपी अपनी ज़मानत खोने जा रही है। चुनाव के दरमियान मोदी साहब, अमित शाह जी इसी तरीके के बयानात देते हैं। वो किसी नीति पे बात नहीं करते, वो किसी मुद्दों पर बात नहीं करते, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पर्सनल हमले करते हैं। और अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट के 2024 के चुनाव से सबक नहीं सीखा है। जनता इसे पसंद नहीं करती है। आप मुद्दों की बात करें। आप सरकार में रहे हैं हरियाणा के अंदर, आपने क्या काम किया है? आपने कोई विकास नहीं किया, आपने लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, आपने किसान को परेशान कर दिया। आप इन बातों पर क्यों नहीं बात करते? हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होने वाली है। मोदी जी कहते रहे हैं कि सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसराइल गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल बमबारी और ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हमने मुतालबा किया है कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले बेगुनाह लोगों को हलाक कर रहे हैं, लिहाजा इसे रोका जाना चाहिए। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले की एक नौजवान खातून ने खुद रोज़गार का बेड़ा उठाया और छोटी सी बेकरी से एक कैफ़े क़ायम कर लिया। सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए दृष्टि ने अपने कारोबार को एक मामूली घरेलू ऑपरेशन से एक मकबूल रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो उनके करियर में एक अहम संग-मेल है। तमिलनाडु की काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है। अदयानिधि स्टालिन को नायब वज़ीर आला बना दिया गया। अदयानिधि स्टालिन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद डीएमके कारकुन जश्न मना रहे हैं। कारकुनों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयाँ तकसीम करके खुशियों का इजहार किया, जबकि बीजेपी ने इस पर सख्त तनकीदें की हैं। बिहार के अररिया में सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से मकानात और रेलवे पटरियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कई ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। आईएमडी ने बिहार के कई अजला में मूसलाधार बारिश और सैलाब की पेशेनगोई की है। आरजेडी के रुकन पार्लिमान मिसा भारती ने कहा है कि खबरों के जरिए हमें यह भी पता चला है कि पानी की सतह बहुत ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि सैलाब की किसी भी सूरत हाल में बिहार हुकूमत इसके लिए तैयार रहेगी। इन्होंने कहा है कि वो पाटलिपुत्रा से रुकन पार्लिमान हैं और इस इलाके के कुछ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल थी, लेकिन इंतज़ामिया ने कोई इक़दाम नहीं किए। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने कठुआ के मंडली इनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। इन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन जारी है और फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की हालत अब मुस्तहकम है। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने कहा है कि हमें कल इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से ऑपरेशन शुरू किया गया। इनकाउंटर में एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद जाँ बहक हुए और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। इनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इलाके में तकरीबन 3 से 4 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता एक ईरानी जासूस ने बताया, फ्रांसीसी अखबार का दावा। हमास के सरबराह याहिया सनवार को गाजा मुंतकिल कर दिया गया। याहिया की सिक्योरिटी में भी लाई गई बड़ी तब्दीली। हसन नसरुल्लाह के कत्ल में अमेरिका भी शामिल। ईरान वसी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरक्ची का बयान। पाकिस्तान अपने कर्म की वजह से पीछे रह गया। पाकिस्तान को सिर्फ इसकी दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती से पहचाना जा सकता है। वजीर खारजा जयशंकर की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर। लुबनान पर इस्राएली हमले जारी। अमेरिकी सदर ने कहा, जंगबंदी का वक्त आ गया। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई। 100 के करीब हलाक, दर्जनों जख्मी।
وقف بورڈ خواتین کے بنیادی حقوق بھی چھین رہا ہے. اسمرتی ایرانی کی نئی منطق قادیانی فرقے کو مسلم وقف بورڈ سے جوڑ کر مسلم سماج کو پہنچائی ٹھیس. راہل گاندھی جھوٹ بولنے کی مشین. امت شاہ کا ہریانہ کے گروگرام میں انتخابی جلسے عام سے خطاب. کانگریس کی راشد الوی نے کہا امت شاہ اور مودی مسائل پر بات کرنے کے بجائے شخصی ریمارک میں مصروف. کٹھوعہ انکاؤنٹر میں 2 عسکریت پسند ہلاک. اتوار کے روز بھی جاری رہا سرچ آپریشن. زخمی پولیس اہلکاروں کی حالت مستحکم. اور بہار کے ارریا میں سیلاب جیسی صورتحال. کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے. اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.